Okay, so today we are going to design a calculator using Python. Now there are many different methods to design a calculator using Python. So first we will start without using any conditional statement, directly how to use a simple method. Now interactive mode, this is interactive mode. If you are asked to design a calculator using Python, normally what we are doing, we are giving two values. Suppose you want to use your calculator to add two numbers 23 and 33. Now what we are doing, we are giving a equals to 23 and then we are giving b equals to 33 and then we are printing the sum of, suppose the question is sum of a and b or 23 and 33, so we are simply printing. Now this is the simplest form. Then using the script mode, we are using here hash comment we are writing. So first method, calculator using Python. Now here also we can do the same thing, value of a and b, you can give any value, suppose 23 or 33. This is not user friendly. Slowly I will show you how to design a menu driven user friendly, step by step. Then final calculator we will design where a menu will be displayed of a calculator, as well as it will be user friendly, that is it will ask the user to enter the numbers and then it will do it work. Now a and b I have given two values and I am printing here a plus b, so print a plus b. So this is not user friendly, as we all know. Okay, let us run the program. So when we are running the module, it is asking to save it. So calculator, now when we are saving it, it is showing 56. Okay. Now in this calculator, what I will do is I will ask the user to enter the values. So for that I am using here a equals to, and then I will take first integer number I am taking. So how to take the input from a user? Input, enter the first number. If two numbers you have to take, then enter the first number. And then suppose just we are designing the addition, subtraction, multiplication, all the mathematical operations on two numbers. So for two numbers I have to take a second number also. So same method, input I will use, enter a second number, enter the second number, and then using the same method a plus b, it will print the sum of the two numbers. Now when you are running this program, it is asking the user to enter two numbers. Enter the first number is 9, suppose, enter the second number is 2, then it is printing 11. But till now it is not so much user friendly. So what I will do is, along with some message I want to print here. So message is sum of, now the two numbers I will write here a and b is. So for that I will come out of the string and variable I will write here a, comma, then and is in string, is a string, then b, again is will be in a string, so after comma. Now you can see I have written the combination of variables and strings, that is whatever is in double quotes will be printed as it is, and whatever is not in double quotes like small a and small b, the value will be printed. So is, and then I will put a comma. So here you can see I have used this sum of, now value of a will be displayed here, and so with comma separator I have used here. Now when you will execute this program, it will ask first to enter two numbers.
Now first number is suppose 12 and first number is 24 and second number is 8. So it is showing here sum of 24 and 8 is 32. So this is only displaying the sum of two numbers. Now I want the difference, product, then quotient, all I want. So what I will do, I will just copy this line and I will paste it, whatever operations you want. So I am just pasting it. Then so whatever operations you want, you paste it as many times. And then the second one I am writing difference of A and B is A minus. Only the operator I have to use, and here the message I have to change. So product of A and B is A star B. Then quotient is, now in quotient we normally use the floor division. So in quotient, only the quotient I want to display, so I have used the floor division, that is 2 slash means it will give you the integer part only. Now remainder or modulus, so here remainder of means after dividing this, what is the remainder? So modulus I am using here. Then the exponentiation, that is exponent of A and B, exponentiation, that is to the power of A to the power B is, now here 2 stars we are using for power, and the final, when you divide it, ratio final is slash. So this I have just written of mathematical operators I have used. Now some students are showing the cube and the square also. So here suppose I want to show the square as well as cube also. So I will write here square of, now two numbers you cannot display, only one number. So now I will show only till here, then I will show you the square and cube. When menu driven I will make it. Now I am running this program. It is asking for two numbers, and these first number is suppose 6 and the second number is 5. So it is showing here sum of 6 and 5 is 11. Difference of 6 and 5 is 1. Product is 30. Quotient 1. Remainder 1. Exponentiation this much. Ratios this much. So this is without menu. This is your calculator. It is showing all the operations and it is without menu. Now I want to show a menu also. Now for that you have to learn if. Now if checks and then it does its work. So if is a conditional statement which will check a condition and it will perform its work. So what I am going to do is, after taking the two numbers, I will take a operator from user. Now operator is always plus minus, any operation you have to do. So for that I will use a string here. For taking a string, input enter any operator. Now enter a operator. Now which operator you want, that you can mention here. Plus sign you want, minus sign you want, double slash you want. So whichever you want from user. Product you want, modulus you want, or single slash you want, or to the power, whatever, whichever operator you want, you have asked the user to enter the operator. After that, what we have to do is, we will take here, it is showing, okay, here double quotes I haven't closed, so it was showing error. Okay, now what I have to do is, I have to check the operator and do its operation. For that I have to use if.
Now if it checks any condition, if the operator is equal to a plus sign, then it will do only the plus operation, that is only it will print the sum. So this you can bring it here. Now you can see a block I have to write here. Whenever you write if statement along with if, the condition you have to check here. So condition is if the operator contains a plus. Now OP is the name of the variable identifier, and double equals to is used to check the equality always. So with if always we use a double equal to sign to check. Yes. Can you repeat from OP? OP. Okay. Now OP. Now this is a menu driven calculator we are going to design. For this, what I require is if user is entering two numbers and then user wants to do only addition or only subtraction, only one operation user wants to do. Previously we have done all the operations together, it is showing all the output. But user wants only addition, only subtraction, only product. For that, what I will do is I will ask the user which operation user wants. So I have taken a variable here OP equals to. Now when you take a numeric value, the numbers can be integer or float. So what I was doing is till now I was taking numbers from user. So it was, if it is integer number, I was writing int. If it is a decimal number, fractional number, decimal numbers, I was writing float. Clear? But now I want to take a operator from the user, so I am making it a string. To take a string from the user, directly input, enter the string. Input, enter the operator, I can write. So now you have shown this message to user, enter a operator, any operator user will enter. That is plus sign user will enter, minus sign will enter, anyone. Now when he will enter plus sign, only addition it will do. When he will enter minus sign, only subtraction it will do. So I am using the conditional statement if. Now if operation is plus, that is addition. Now this is a block. So if OP double equals to, plus is a string, so it is in single quotes or double quotes, then you have to make a block. So here colon you have to write. When you will type colon, automatically when you will press enter, you will see cursor will not come here, cursor will make a block. So here you can see a block is made, and after this block is over, then again we can return to the original position. And now the second condition I am checking here, that is if the operator is a minus sign. If it is a minus sign, now the difference, see when I am pressing after the block, I am pressing enter, it is indented. So a block it is making. Ma'am, Now, yes, why we have to take double equals to in operator? yes. Now what happens is double equals to is a equality sign. It is called an equality sign. When we are checking any value, whether it is equal to that value or not, we are using equality sign, and with if always we are using for checking a value the equality sign. When we are assigning any value, then single equals to sign. जब किसी वेरिएबल को एक वैल्यू दे रहे हो तब एक सिंगल इक्वल्स टू यूज करोगे. लेकिन जब हम चेक करेंगे, कोई भी नाम को चेक करना है, कोई भी नंबर को चेक करना है, या यहाँ पे जैसे ऑपरेटर को चेक कर रहे हैं, तो जब भी हम इफ लगा के चेक करते हैं तो उसमें हमेशा डबल इक्वल्स टू, इसको इक्वालिटी बोलते हैं, इक्वालिटी साइन ऑपरेटर. तो ये इक्वालिटी ऑपरेटर जब भी चेक करते हैं वहाँ पे यूज होता है, इसलिए यहाँ पे हमने डबल इक्वल्स टू यूज किया है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज, नाउ दिस वी आर रिपीटिंग एवरीवेयर, ये हर जगह रिपीट हो रहा है. और इसमें हमको क्या करना है, खाली ये चेंज करना है. इसमें प्रोडक्ट के लिए हमको स्टार लगाना है. सिंगल इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं, डबल इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं. इफ का ब्लॉक होता है इसलिए कोलन डालते हैं.
जब एंटर करोगे थोड़ा सा ये जो आगे जो जगह छोड़ रहा है इसको क्या बोलता है, इंडेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इंडेंटेड करके फिर लिखना है। तो ये जब हम टाइप करेंगे तब हम वैसे ही टाइप करेंगे। अभी तो मैं इसको जस्ट फॉर्मेट कर रही हूँ, इसीलिए मेरे को वहाँ पे वापस आना पड़ रहा है। नॉर्मली हम वहीं पे टाइप करते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें हम क्वोशंट के लिए, फ्लोर डिवीजन के लिए हम डबल स्लैश ले रहे हैं यूजर से। नेक्स्ट सेम इंडेंट करना है हमको, तो एंटर करके मैंने इसको बैक स्पेस दिया तो ये वापस आ गया। इंडेंट के लिए ये इंडेंटेशन थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर प्रॉपर इंडेंटेशन नहीं होगा तो वह एरर दिखाएगा। रिमाइंडर के लिए हमको क्या करना है, परसेंट साइन यूज करना है रिमाइंडर के लिए, ठीक है। अब सेम इंडेंटेशन के लिए हमको एंटर करके जो स्पेस छूटा हुआ है वहां पे वापस आना है। एक्सपोनेंशिएशन के लिए हम यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन के लिए 2 स्टार लगाएंगे, तो यहाँ पे 2 स्टार होगा। और इसके बाद सेम इंडेंट होना है। इंडेंट होने के लिए तुम यहाँ डिलीट से भी कर सकते हो या फिर नीचे आके बैक स्पेस से भी। उसको सिंटैक्स जो तुम्हारा कमांड है उसको तुमको वहाँ पे लाना है। नेक्स्ट लास्ट हमारा खाली स्लैश है, तो स्लैश के लिए तो ये हमने यूजर से ऊपर। अब एग्जीक्यूट जब हम करेंगे जैसे एंटर करके डिलीट, देखो अब ये हो गया हमारा पूरा। अगर प्लस है तो खाली सम दिखाएगा, यूजर ने अगर माइनस साइन लिया है तो खाली डिफरेंस दिखाएगा, अगर स्टार लिया है तो खाली प्रोडक्ट। तो यूजर के सिलेक्शन के हिसाब से वो काम करेगा। अब इसको जब हम रन करा रहे हैं, रन मॉड्यूल, तब ये यहाँ पे एंटर द फर्स्ट नंबर, सपोज फर्स्ट नंबर इज 7 या कोई छोटा नंबर लेते ताकि पावर भी हम चेक कर सके, तो 4 लेते हैं। एंटर द सेकेंड नंबर, सपोज 3 लेते हैं इसमें। अब हम एंटर कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है एंटर ऑपरेटर। देखो अब उसने क्या पूछा, एंटर ऑपरेटर। अब हमको कौन सा ऑपरेशन चाहिए, प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, स्टार चाहिए, जो तुमको ऑपरेटर चाहिए वो तुमको टाइप करना है। तो यूजर सपोज उसको प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट ऑफ 4 and 3, तो यूजर ने ऑपरेटर स्टार दिया। जब यूजर ने स्टार दिया तो इसने क्या दिखाया, प्रोडक्ट ऑफ 4 and 3 is 12। एक बार उसने खाली आउटपुट दिखा दिया, प्रोडक्ट ऑफ 4 and 3 is 12, ठीक है। अब इसके बाद जो तुम्हारा चैप्टर है फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो इसके बाद शुरू होगा, उसमें और भी यूजर फ्रेंडली बनाने के प्रोग्राम्स हैं। जैसे उसमें तुम एक इटरेटिव स्टेटमेंट सीखोगे, मैं अभी दिखा दे रही हूँ, लेकिन उसको हम लोग बाद में यूज मीन्स डिटेल में हम बाद में उसको सीखने वाले हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो मेनू है इसको हम ऊपर अगर दिखा दे कि प्लस इसके लिए है, सिलेक्ट 1 फॉर प्लस, या तो उसमें हम वाइल ट्रू करके बार बार इस मेनू को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इस पूरे को वाइल ट्रू के अंदर लिखूं, इसको हम लोग जब इटरेटिव स्टेटमेंट्स अभी बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीक जब करेंगे तो इसको डिटेल में हम लोग करेंगे। वाइल एक लूप होता है जिसमें इस काम को बार बार हम, जैसे अभी एक बार प्रोडक्ट करके वो बंद हो गया है, वैसे नहीं चाहिए हमको, इसको बार बार कराना। तो मैं इसको पूरे को वाइल ट्रू के अंदर का ब्लॉक बनाने के लिए मैं देखो पूरे इंडेंट कर दे रही हूँ। अब इंडेंटेशन में क्या हुआ, ये इसका ब्लॉक बन गया, ये पूरा जो है ये वाइल का ब्लॉक बन गया। अब क्या होगा, जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी इसको तो ये वाइल के अंदर ही रह जाएगा। लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम आएगा, क्या प्रॉब्लम आएगा कि ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। वाइल ट्रू का मतलब है इनफाइनाइट लूप। तो इसमें हमको एग्जिट करने के लिए हमको मेंशन करना पड़ेगा कि तुम किस काम मतलब कब एग्जिट करना चाहते हो, ठीक है। तो यूजर जब यहाँ पे एग्जिट कमांड लेगा, ऑपरेटर नन, सपोज यहाँ पे वो नन के लिए तुम एक सिंबल डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे एग्जिट के लिए तुम एक मेंशन कर सकते हो कि 0 फॉर एग्जिट,
तो मैंने यहाँ पे 0 to exit लिखा, मतलब जब मेरे को काम कंप्लीट करना है, इसको बंद करना, और नहीं तो इनफाइनाइट लूपिंग हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जिट में क्या होता है कि जब हम एग्जिट करते हैं तब इफ, अगर मेरा ऑपरेटर, इफ तो स्मॉल लेटर होगा, सिंटैक्स है, कीवर्ड है, ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिया यूजर से, तो अब एग्जिट करने के लिए यहाँ पे एक ब्रेक कमांड होता है, ब्रेक से एग्जिट हो जाएगा, ये व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा, ब्रेक विल ब्रेक आउट ऑफ द व्हाइल लूप। उसके पहले मेरे को एक प्रिंट मैसेज करना है कि थैंक यू फॉर यूजिंग माय कैलकुलेटर। ठीक है, तो कोई भी मैसेज जरूरी नहीं है, जस्ट हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से बना रहे हैं, कैलकुलेटर को अच्छे से बना रहे हैं, तो इसलिए थैंक यू फॉर यूजिंग कैलकुलेटर। ये मैंने एक मैसेज दिखा दिया ताकि हमको समझ में भी आ जाए कि यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। एक मैसेज दिखा के फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक किया, तो ब्रेक क्या करेगा, ये व्हाइल लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। अब जब हम रन करा रहे हैं तब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनू आ गया, एंटर द फर्स्ट नंबर सपोज आई हैव गिवन इज 11 और 22। Now enter a second number is suppose 6. Now it is asking for an operator. अब कौन सा ऑपरेशन, सपोज मेरे को प्लस करना है, तो इसने दिखा दिया सम ऑफ 22 and 6 is 28। अब मैंने व्हाइल लूप के अंदर रखा है, मतलब क्या करेगा, ये रिपीट होगा। अब रिपीट में प्रॉब्लम ये हो गया कि मैंने ऑपरेटर को लास्ट में रख दिया, तो उसमें क्या होगा कि पहले वो फर्स्ट नंबर पूछेगा, फिर सेकंड नंबर पूछेगा, फिर ऑपरेटर पूछेगा। तो मेरे को जब एग्जिट करना होगा तो वो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पूछने के बाद वो एग्जिट कर रहा है, तो मेरे को ऑपरेटर को ऊपर रखना था। ऊपर रखने से क्या होता है कि अगर मैं एग्जिट करना चाहूंगी 0 डालने पे, वो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, अच्छा हाँ वो तो उसके नीचे रहेगा ही, तो वो तो पूछेगा ही। ठीक है, लेट इट बी। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर अब मैं चेंज भी कर सकती हूँ, सपोज मैंने चेंज कर दिया, 4 दिया, सेकंड नंबर 2 दिया। अब उसने ऑपरेशन पूछा, मैंने माइनस साइन दिया, तो उसने 4 और 2 का डिफरेंस बता दिया, अभी भी वो लूप के अंदर है। ठीक है, फिर मेरे को डबल स्लैश देखना है, क्वेश्चन देखना है, तो मैंने 5 दिया, उसके बाद मैंने 3 दिया, तो 3 1 3 क्वेश्चन 1 दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने डबल स्लैश दिया, तो उसने क्वेश्चन 1 दिखाया। फिर से उसने पूछा, तो मेरे को अब परसेंट देखना है, मैंने 5 दिया, उसके बाद 3 दिया, तो उसका रिमाइंडर कितना आता है, 3 1 3, रिमाइंडर 2 आता है। तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर के लिए परसेंट साइन दिया, तो इसने यहाँ पे रिमाइंडर दिखाया। ठीक है, तो ये अभी भी उतना यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन के लिए, सपोज एक छोटा सा बच्चा तुम्हारा कैलकुलेटर यूज कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि परसेंट साइन जो है वो रिमाइंडर के लिए, ठीक है, डबल स्टार जो है वो पावर के लिए, ये उसको पता होना चाहिए। तुम सॉफ्टवेयर किसी के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो इमेजिन करो कि स्मॉल किड ऑफ क्लास 3 क्लास 4 इज यूजिंग योर सॉफ्टवेयर और योर ऐप ऑफ कैलकुलेटर। अब इसको और अच्छे से डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करने के लिए तो कोई भी नंबर यहाँ पे डाल दो, और उसके बाद उसको एग्जिट करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 डालेंगे। तो यहाँ पे वो एक मैसेज दिखाएगा, थैंक यू फॉर यूजिंग कैलकुलेटर, और देखो वो एग्जिट कर कर्सर दिखा दिया, मतलब ये एग्जिट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा जो कैलकुलेटर है ये बन तो गया, लेकिन ये बड़े बच्चों के लिए बना है। इसमें सपोज छोटे बच्चे को पता नहीं है, परसेंट साइन रिमाइंडर देता है, डबल स्लैश फ्लोर डिवीजन देता है। अब उसको और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए हम यहाँ पे मेनू डाल देंगे। मेनू कैसे डालते हैं, मेनू हम प्रिंट कमांड से मेनू डाल सकते हैं, यूजर से चॉइस ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सपोज 2 नंबर, अच्छा ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर को मैं अगर अंदर इसके कंट्रोल यहाँ से मैं हटा दे रही हूँ, और मैं हर एक ऑपरेशन के यहाँ पे मैं इस
नंबर को यूजर से लेके, हर एक ऑपरेशन से पहले मैं यूजर से लेके फिर मैं उस ऑपरेशन को अगर करती हूँ तो इसमें फायदा क्या है बताओ कोई? मैं क्यों अभी इसको हर एक ऑपरेशन से पहले डाल रही हूँ? एनीबडी हु कैन टेल? इससे पता चल जाएगा कि अभी कौन सा सम करना है। हाँ, पहले भी पता चल जा रहा था, जब मैंने ऊपर डाला था तो भी वो ऑपरेशन जो है ऑपरेटर से पता चल जा रहा था। मैंने ये एंटर द फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को यहाँ पे हर एक इफ के अंदर क्यों डाल दिया? पहले बाहर एक बार डाला था तो वो तो इजी हो रहा था, एक ही बार डाला हुआ था। अभी मैं सबके अंदर हर एक ऑपरेशन के अंदर क्यों डाल रही हूँ? कोई बोल पाएगा? Why I am doing this? हाँ बोलो। मैम बार बार नहीं आएगा। बार बार तो ऑपरेशन से पहले लेना ही है। मैम आपको माइनस प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, आप वो तो अंदर मैं लिख मेनू दे दूंगी, वो अलग चीज है। मैंने अभी एंटर द फर्स्ट नंबर और एंटर द सेकंड नंबर को मैंने यहाँ पे हर एक ऑपरेशन के अंदर कैसे क्यों डाला? बाहर एक बार लिखा मैम। हुआ था। हाँ बोलो। मैम क्योंकि आप जब एग्जिट करते हैं तब उधर पर दिखा रहा था कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, तब जाके एग्जिट कर पाते थे, अभी नहीं होगा ऐसे। वेरी गुड कुशाल, एक्सीलेंट। यस, नाउ दिस बाहर जब लिख रहे थे तो क्या हो रहा था? वो हर बार एंटर द फर्स्ट नंबर एंटर द सेकंड नंबर ले रहा था और उसके बाद ऑपरेटर लेके काम कर रहा था। जब एग्जिट करना होता था तभी भी वो क्या कर रहा था? एंटर द फर्स्ट नंबर एंटर द सेकंड नंबर ले रहा था, फिर एग्जिट कर रहा था। तो हम जब किसी के लिए सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एकदम 100% परफेक्ट होना चाहिए। हम अगर 2 नंबर लेके एग्जिट कर रहे हैं तो फालतू, वो मेहनत फालतू हो रहा है। तो हमने क्या किया? सबके अंदर डाल दिया। एग्जिट में मैंने नहीं डाला। देखो लास्ट वाला जो एग्जिट है यहाँ पे मैंने नहीं डाला। तो अब हम कभी भी एग्जिट करेंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर एंटर द सेकंड नंबर वो नहीं दिखाएगा। ठीक है। और यहाँ पे अब हम मेनू दिखाने जा रहे हैं। तो मेनू में हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम प्रिंट स्टेटमेंट लेंगे और यहाँ पे ऑपरेशन एंटर एक मेनू दिखा रहे हैं, या फिर सपोज अभी मेनू ही दिखा देते हैं। मेनू में अलग अलग लाइन के लिए हम /n यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग लाइन में मेरे को मेनू दिखाना है तो मैंने यहाँ पे /n यूज किया है, स्मॉल n होता है, /n यूज किया है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मेनू दिखाया। मेनू में मेरे को क्या क्या चाहिए? सपोज मेरे को 1 फॉर, मैं एक वर्चुअल कीबोर्ड 1 के लिए ओपन कर रही हूँ। हाँ, मेनू में मेरे को 1 फॉर एडिशन। मैंने यहाँ पे सपोज कोई किड है, छोटा सा बच्चा है, तो मैंने एक काम किया, एडिशन एज वेल एज, मैं ब्रैकेट में इसको मेंशन कर दे रही हूँ कि प्लस साइन के लिए है। तो मैंने यहाँ पे, या फिर एडिशन और प्लस साइन, तो ये मैंने दोनों लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट। ऐसे ही हम /n करके हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन माइनस। तो ये हम टाइप भी कर सकते हैं 2 फॉर। मैम हाँ, हम /n का मतलब क्या होता है? /n न्यू लाइन के लिए होता है, एस्केप सीक्वेंस है। हमको जब ये आउटपुट दिखाएंगे, हम इसको, मैं भी एक बार इसको सब्ट्रैक्शन को रन करा के दिखाती हूँ /n में कैसे दिखेगा। सब्ट्रैक्शन में मैंने माइनस साइन डाल दिया है। ठीक है, अब ये मैंने मेनू दिखा दिया। मेनू दिखाने के बाद जब मैं इसको रन कराऊंगी और यहाँ पे मैं यूजर से ये जो 1 2 3 4 है चॉइस, ये ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे चॉइस ले लूंगी, एंटर योर चॉइस। मैं /n को भी दिखा रही हूँ, रन करके दिखा रही हूँ। अच्छा, चॉइस में मेरे को 1 2 3 4 लेना है। 1 2 3 4 तो इंटीजर नंबर है, तो मैं यहाँ पे इंट एंटर योर चॉइस दिखा रही हूँ। अब जब मैं इसको रन कराऊंगी तो यहाँ पे /n जो है एडिशन को एक लाइन में दिखाएगा, सब्ट्रैक्शन को अलग लाइन में दिखाएगा। ये देखो, मेनू में एडिशन को उसने ऐसे दिखाया, सब्ट्रैक्शन को उसने ऐसे दिखाया। ठीक है, इसमें जैसे मैं 0 डालूंगी
तो फिर वो अभी तो मैं एग्जिट कर जा रही हूँ क्योंकि मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं था। तो यहाँ पे अच्छा, प्रोग्राम को पहले मैं कंप्लीट कर लूँ क्योंकि वो इंटीजर है तो इसीलिए वो गलत हो जा रहा है। हाँ, इसको मैं कंप्लीट कर लूँ पहले। तो इसमें क्या हो रहा है कि 1 फॉर एडिशन है, तो मेरे को चेक किससे करना है? चेक अभी स्ट्रिंग नहीं रहा, स्ट्रिंग नहीं रहा, उसका मतलब मेरे को जो ऊपर का कोड से वो हटा देना है। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है? यहाँ पे मेरे को 1 लिखना है, 1। ठीक है, 1 है जो वो एडिशन के लिए, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए है। ऐसे ही तुम /n मतलब न्यू लाइन में, अलग लाइन में तुमको ये दिखाना है। 3 में तुम क्या दिखाओगे? स्टार, प्रोडक्ट के लिए तुम 3 दिखाओगे, तो यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट के लिए 3 है, ठीक है, स्टार के लिए 3 है। फिर से न्यू लाइन में 4th मेनू जो रहेगा वो तुम्हारा, चौथा मेनू किसके लिए था? फ्लोर डिवीजन के लिए था, तो वो तुम लिख दे रहे हो यहाँ पे, या फिर कोशेंट के लिए था। जो इजीली समझ में आ जाए वो तुमको लिखना है। कोशेंट के लिए हम / यूज करते हैं। ऐसे ही सारे मेनूज को दिखा दोगे। और जो लास्ट वाला मेनू है, सपोज मेरा जो 10th मेनू है, बीच में तो सारे मेनूज आ जाएंगे, जो 10th मेनू है वो तुम्हारा एग्जिट के लिए है, तो यहाँ पे मैंने 10th मेनू में मैंने एग्जिट लिखा। ठीक है, ये मेरा मेनू हो गया। अब हमने यहाँ पे इंट करके चॉइस लिया। अब इसमें चॉइस जब हम इंट करके ले रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे हर जगह पे न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर कभी भी कोट्स नहीं लगता है। तो ये थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली हो जा रहा है। ये एक्चुअली हम एक स्मॉल किड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि उसको इजीली समझ में आ जाए। 5, 6, 7 ऐसे ही करके ये पूरा चलता जाएगा। 6 रहेगा, ये 7 रहेगा, फिर 8 में हमने ये डाला है, मैंने ऊपर 10 लिखा है तो मैं यहाँ पे 10 डाल रही हूँ। ये 1 रहेगा, इसमें 1 डाल देता है। ये हमारा जो प्रोग्राम है, अब देखोगे जब ये रन करा रहे हो तो कितने अच्छे से ये रन हो रहा है। देखो मेनू आ गया, एडिशन के लिए प्लस, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस। अब एक छोटा जो किड है उसके लिए तुमने एंटर योर चॉइस लिखा है, तो उस बच्चे को एडिशन खाली करना है। वो क्या करेगा? 1 सिलेक्ट करेगा। ठीक है, 1 सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से मैं 1 सिलेक्ट कर रही हूँ। वेट, रन में, एग्जीक्यूशन में, यहाँ पे ये विंडो क्यों ओपन हो जा रहा है? हाँ, यहाँ पे मेरे को 1 सिलेक्ट करना है। जब मैं 1 सिलेक्ट कर रही हूँ तो वो क्या पूछेगा? एंटर द फर्स्ट नंबर, एडिशन करना है। 1 मतलब एडिशन करना है, तो एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने 5 दिया, एंटर द सेकेंड नंबर मैंने 2 दिया, तो सम ऑफ 2 नंबर इज 5 + 2 = 7, उसने दिखा दिया। फिर से मेनू आ गया। अब उस बच्चे को सब्ट्रैक्शन करना है, तो उस बच्चे ने यहाँ पे क्या डाला? 2 डाला, तो उसने पूछा, अब उसको पता है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एंटर द फर्स्ट नंबर, उसने फर्स्ट नंबर में सपोज 6 डाला, एंटर द सेकेंड नंबर में उसने 4 डाला, तो इसने दिखा दिया डिफरेंस ऑफ 6 and 4 is 2। जब तक वो एग्जिट नहीं करेगा, 10 नहीं सिलेक्ट करेगा, तब तक ये व्हाइल लूप चलता जाएगा। अब उस बच्चे को प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के लिए वो 3 डालेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, 3 to the 6, प्रोडक्ट ऑफ 3 and 2 is 6, सही है। फिर उसको कोशेंट चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे वो 4 डालेगा, फिर एंटर करेगा, एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द सेकेंड नंबर, 2 to the 4 होता है, कोशेंट में 2 आएगा, तो कोशेंट ऑफ 5 and 2 is 2, सही है। ठीक है, अब हमने 5, 6, 7 यहाँ पे दिखाना था, हमने दिखाया नहीं है, लेकिन वहाँ कोडिंग हमने लिखा है, तो अगर हम 5, 6, 7 डालेंगे वो काम तो करेगा, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, थोड़ा यूजर फ्रेंडली, थोड़ा सा नहीं। लेकिन मैं जब 10 डालूंगी यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे 10 डाला, 10 10 डाला,
अब मैं एंटर करूंगी तो क्लोज हो जाएगा। थैंक यू फॉर यूजिंग कैलकुलेटर करके बंद हो गया। तो ये पूरा अच्छे से रन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या एडिशन करना है, 4 तक हमने लिखा था, 5, 6, 7 मेनू हमने नहीं डाला था। 5 रिमाइंडर के लिए है, फिर एक्सपोनेंट के लिए है, फिर रेशियो के लिए, मीन्स डिवाइड करने पे क्या आ रहा है। तो इसको हम यहाँ मेनू में ऐड कर देंगे, यहाँ पे स्लैश n के बाद कि 5 जो है वो रिमाइंडर के लिए है। ठीक है, आ रहा है समझ में सबको कैसे कैलकुलेटर को मैंने स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट कैलकुलेटर मैंने दिखाया जिसमें कोई मेनू नहीं था, वो सब ऑपरेशन कर रहा था। सेकंड दिखाया कि जिसमें यूजर से लेके ऑपरेशन कर रहा था। थर्ड हमने दिखाया कि इफ से वो ऑपरेटर लेके कर रहा था। फोर्थ हमने दिखाया कि वाइल से वो जितने बार तुमको ऑपरेटर लेना है ले सकते हो। फिर करते करते हम अपने प्रोग्राम को जितना यूजर, सारे सही हैं, तुम पहला वाला जो है कैलकुलेटर में उसको लिखोगे तो भी फुल नंबर मिलेगा। जो सेकंड वाला हमारा था यूजर फ्रेंडली, यूजर से लेके, वो भी, उसमें भी फुल नंबर मिलेगा तुमको। जो थर्ड इफ लेके था उसमें भी मिलेगा। फिर वाइल लेके जो मैंने अभी लिखा इसमें भी मिलेगा। सारे प्रोग्राम्स तुम्हारे अब तक के सही हैं, तो सारे रन हो रहे हैं, ये दिख रहा है तुमको, सारे रन हो रहे हैं। तो सारे सही प्रोग्राम है, चाहे वो फर्स्ट वाला प्रोग्राम ही क्यों ना हो जिसमें वो डायरेक्टली लेके ऑपरेशन कर रहा था या फिर यूजर से लेके ऑपरेशन कर रहा था, सारे सही है, सारे प्रोग्राम सही। तुम कोई भी लिखोगे, इसको और अच्छे से और डेवलप कर सकते हैं। तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसके लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हो और कितना यूजर फ्रेंडली तुम बना सकते हो। ठीक है, जब एप्स को यूज करते हो देखोगे कुछ कुछ एप्स ऐसे हैं जो बीच में कुछ गलत डेटा डाल देने पे वो वहां पे हैंग हो जाता है या फिर क्लोज हो जाता है। सपोज उसने पूछा एंटर योर नेम, मैंने 1 2 3 दिया और वो क्लोज हो गया। ठीक है, वो तो यूजर फ्रेंडली नहीं हुआ ना। उसको क्या करना था, उसको दिखाना था कि नेम शुड बी, इन नेम यू शुड यूज ओनली अल्फाबेट्स, यू कैन नॉट यूज न्यूमेरिक वैल्यू। तो तुमको ये एज्यूम करना है कि जो सॉफ्टवेयर तुम डिज़ाइन कर रहे हो वो कोई भी एक छोटा सा बच्चा या किसी को कोई नॉलेज नहीं है वो भी उसको यूज़ कर रहा है, तो उसमें वो गलतियाँ कर सकता है। तो कितना तुम यहाँ पे यूज़र फ्रेंडली बना सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक छोटे से कैलकुलेटर को हम कितने तरीके से बना सकते हैं वो हमने आज देखा है।